نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین حضرات، آج سے تقریباً ایک صدی پہلے مسلمان جس وقت برصغیر پاک و ہند میں مکمل طور پر مغلوب ہو گئے تھے اور انگریز کا یونین جیک چاروں طرف لہرا رہا تھا اور انگریز خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی نبھا رہا تھا اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش نہ کی ہو، ایسے میں کچھ آوازیں اٹھی تھیں جو آوازیں اس مسلم امہ کو جگانے میں مصروف تھی۔ ان میں سے ایک آواز الطاف حسین حالی کی تھی۔ الطاف حسین حالی کی وہ جو مسدس ہے اس کے بارے میں سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کون سے عمل کیے تو میں کہوں گا میں نے حالی سے مسدس سکھائی تھی۔ اس کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے: پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے۔ اور پھر وہ جو ان کا مشہور شعر ہے کہ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، نحوست ہر طرف منڈلا رہی، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے۔ بڑی کمال۔ اسی کے آخر میں انہوں نے وہ دعا کی تھی: یا خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں وہ آج قریب القربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی آواز ابھری اور جو ان کا خاص طور پہ ہے کہ تیری بربادیوں کے وطن کی فکر کرنا تھا، قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ تمام اشعار سنانے کا آج اس لیے دل چاہ رہا ہے کہ آج تقریباً وہی کیفیت ہے کہ جو اس زمانے میں تھی۔ پاکستان 75 سالہ تاریخ میں اپنے اس موڑ پر آ چکا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے دسترخوان پر بھوکے بھیڑیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور تمہیں اس طرح خوف کا شکار کریں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت بالکل اس بہتے پانی کے اوپر خس و خاشاک کی طرح ہوگی کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: تم میں ایک مرض آ جائے گا جسے وہن کہتے ہیں، زندگی سے پیار اور موت کا خوف۔ آج سے 3 یا 4 دن قبل اکانومسٹ جو کہ بہت مشہور میگزین ہے، اس کا ایک انٹیلیجنس یونٹ ہے، اور وہ یونٹ انگلینڈ کے اندر ہے۔ اس نے کچھ 50 صفحے کی ایک رپورٹ شائع کی ہے جو پاکستان کی کنٹری رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ انٹیلیجنس یونٹ 3 طرح کی رپورٹیں شائع کرتے ہیں۔ ایک ان کی رپورٹ یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے کو فور کاسٹ دیتے ہیں کہ اس کے حالات کیسے ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ان کی رپورٹ ہوتی ہے کسی ملک کے اندر صنعتی اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کی کیا پراسپیکٹس ہیں اور اس کے اندر کس طرح کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری رپورٹ 5 سال کے مستقبل کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ کی خاصیت یہ ہے کہ 10 مارچ 2022 کو انہوں نے پاکستان کے بارے میں 5 سالہ پیشگوئی کی تھی، اور اس کو انہوں نے 1 سال کے اندر ریوائز کیا ہے اور کہا ہے کہ میری پیشگوئی غلط تھی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ 10 اپریل کے بعد جو حکومت پاکستان میں آئے گی وہ پاکستان کو اس طرح کی حیثیت میں گرفتار کر دے گی، اس طرح کے حالات کا شکار کر دے گی کہ پاکستان مکمل طور پر تباہی کے کنارے آ جائے گا۔ اس کے بنیادی 7 نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد پہ گفتگو کریں گے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ابھرنے والی ایک معیشت ہے جو اندرونی اور بیرونی سطح پر معاشی عدم استحکام کے دیرینہ مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے سیاسی عدم استحکام، اندرون ملک سیکورٹی خدشات اور معاشی پالیسیوں میں خرابی کی وجہ سے یہ ہرگز سرمایہ کاری کی توجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ انٹیلیجنس یونٹ یہ امید رکھتا ہے کہ شہباز شریف حکومت 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی، اور یہ پیشگوئی بھی کرتا ہے کہ آئندہ الیکشن عمران خان کی تحریک انصاف جیتے گی، مگر اس وقت پاکستان میں سیکورٹی کے حالات اس قدر کمزور ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہوں گے۔
स्टेट बैंक अपनी मालियाती पॉलिसी को मजीद सख्त कर देगा और 2023 के अक्टूबर में दो शरह सूद 23% तक ले जाएगा, ताकि इस तरह वो IMF के अहकामात पर अमल भी करे और मुल्क में अफरात ज़र का मुकाबला भी कर सके। माशी तरक्की की रफ्तार से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 2024 के जून तक भी शरह सूद किसी तौर पर कम नहीं हो सकेगा। मौजूदा बुरे माशी हालात को देखते हुए हम समझते हैं कि हमने 2022-23 में पाकिस्तान की GDP की शरह नमू का जो अंदाज़ा 1.5% लगाया था, वो हाथ घट कर 0.2% हो जाएगी। इस बदहाली की वजूहात बेशुमार हैं, जिनमें गुर्बत के असरात, अवाम के अखराजात में कमी, आलमी माशी मसाइल और खौफनाक हद तक शरह सूद की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत कम है। अलबत्ता 2023 से 2027 के अरसे में पेशगोई है कि इमरान हुकूमत के बाद शायद शरह नमू बेहतर हो जाए। हमें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जुलाई 2023 से शुरू होने वाले माशी साल में दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कर्ज़ों की किस्त अदा करने के लिए ज़र मुबादला मौजूद नहीं और IMF का प्रोग्राम भी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान किस्तों की अदायगी के लिए मज़ीद रकम हासिल नहीं कर पाएगा। कमज़ोर माशी मसाइल ने कई साल से इस मुल्क की मीशत को दीगर एशियाई मुल्कों की मंडियों, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी बुरी हालत में ला खड़ा किया है और मौजूदा शाहबाज हुकूमत ने इस किस्म की इस्लाहात की हैं, वो आइंदा 4 सालों में पाकिस्तान की माशी तरक्की का गला घोंट कर रख देंगे। हमें यकीन है कि पाकिस्तान रूस और चीन से अपने तल्लुकात मजबूत करने के लिए मगरबी दुनिया से अपने तल्लुकात की कुर्बानी देगा। भारत से उसके तल्लुकात कशीदा रहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान की मदद करता रहेगा, लेकिन तालिबान को तस्लीम नहीं करेगा। इसके बाद उन्होंने 25 पॉइंट का एक पैमाना बताया है और उसमें उन्होंने 4-5 चीज़ों को नापा है कि अगर पाकिस्तान में इस सूरत हाल के अंदर मार्शल लॉ लग गया तो फिर 15 पॉइंट उन्होंने बताया है उस तरह की खराबी आएगी, यानी इससे बड़ी खराबी कभी नहीं आ सकती। इसी तरह उन्होंने कहा है कि अगर IMF अगर छोड़ गया तो तब भी ऐसी खराबी आएगी। तीसरा है कि इमरान खान को अगर नाअहल करार दे दिया गया तब 12% आएगी। अब इसको यूँ इकट्ठा कर लीजिएगा कि 12 पॉइंट इमरान खान की नाअहली के बाद, फिर 15 पॉइंट जो हैं उसके मार्शल लॉ के लगने के बाद या फ़ौज के आने के बाद, और फिर IMF के यहाँ से चले जाने के बाद, प्रोग्राम बंद होने के बाद। ये है पाकिस्तान की हालत। अब आते हैं इस वक्त पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में क्या ज़ेर बहस है। इस वक्त पूरी दुनिया में पोस्ट डिफ़ॉल्ट या पोस्ट पाकिस्तान सिनेरियो की गुफ्तगू हो रही है, यानी पाकिस्तान के बाद क्या होगा। आज से तकरीबन 14-15 साल पहले के, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा पहले, मेरा ख्याल 2006 की बात है, एक अमेरिकन वॉर जर्नल के अंदर एक नक्शा शाया हुआ था जो रॉल्फ पीटर्स के नाम से नक्शा था, और उसने कहा था कि हम आइंदा अमेरिकन जो हैं उनको पूरी दुनिया की जो खुसूसन मुसलमान दुनिया है इसको रीअरेंज करेंगे। ये जो मुल्क बने हुए हैं, जो बना दिए गए थे 1947 में से लेकर 1957-60 तक, ये बड़ी जल्दी जल्दी में बनाए गए थे और उनको हम दोबारा से ठीक करेंगे। उस मसले में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो नक्शा बनाया था उसमें ग्रेटर बलूचिस्तान बिल्कुल अलहदा था और वो बिल्कुल दूर उस तरफ था। बाकी जो KPK का जो इलाका था वो कहीं जाके उसके साथ मिल जाता था अफगानिस्तान के साथ, ये उसके ज़ेर असर हो जाता, और पंजाब और सिंध जो है वो यहाँ अलहदा था, जबकि इंडिया को किसी तौर पर तोड़ने की कोशिश नहीं की गई थी। इसी तरह यमन को जो बहुत आगे तक ले जाके रुबा अल खाली का इलाका उनको दे दिया गया था। इराक़ में एक शिया इराक़, एक सुन्नी इराक़ बन चुका था, और इस तरह की सारे नक्शे जो थे वो बहुत हद तक पूरी दुनिया में फैलाए गए और वो बहस बहुत चल रही थी। और ये वो ज़माना था जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका बैठा हुआ था और इराक़ में भी अमेरिका बैठा हुआ था। उसके बाद मैं 2007 में जब भारत गया तो भारत में LK अडवाणी ने, चूँकि मुझे अपने उस ट्रिप के लिए बुलाया था, वो कटास राज में मैं काम कर रहा था, तो LK अडवाणी के साथ गुफ्तगू के दौरान एक बहुत अहम नुक्ता इस नक्शे के बारे में भी हुआ। तो अडवाणी ने यह कहा था कि हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए गए तो फिर पाकिस्तान के साथ साथ भारत के टुकड़े टुकड़े होने से भी कोई रोक नहीं सकेगा। यानी बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा रास्ता खोलेगी, एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट करेगी कि इंडिया के अंदर भी टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे और ये बॉर्डर इतना पोरस हो जाएगा कि किसी किस्म का भी जहादी कहीं भी जा सकेगा। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इस तरह पे इकट्ठा रहे। इसके बाद एक और अहम किताब आई अमेरिका के अंदर, जिस किताब को आजकल बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा रही है कि नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। कि अमेरिकी ने कहा था कि हम पाकिस्तान से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हम निकल जाएं तो फिर उसके बाद होगा ये कि फिर पूरे के
पूरे यूक्रेन तक शायद हमारा कोई नामो निशान तक ना रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान में हमारे मतलब की गवर्नमेंट नहीं, आगे फिर रूस शुरू हो जाता है, रूस के आखिर पे आके कहीं यूक्रेन आता है, इवन जो बाल्टिक सी की रियासतें हैं उनके अंदर भी हमारा कोई उस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। इसके बाद एक और तब्दीली बहुत ज़बरदस्त किस्म की आई, और वो तब्दीली आई है ईरान और सऊदी अरब की आपस में मिलने से। तो यूँ पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर प्ले कर रही हैं। यहाँ पर अहम तरीन बात जिसके बारे में अब मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जिस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पोस्ट डिफ़ॉल्ट सिनेरियो पे गुफ्तगू हो रही है और हम समझ रहे हैं कि हम आंखें बंद करके उस खतरे से दो चार नहीं होंगे। रूस, चीन और उसके साथ साथ इंडिया के साथ उसका एक जिसे कहते हैं छुपा हुआ रोमांस, और बाकी सारे मामलात के अलावा सऊदी अरब, ईरान और चीन की आपस में एक ख़ास किस्म की दोस्ती, और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ने पाकिस्तान को बहुत खौफनाक किस्म के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। यहाँ आज कहने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान से चाहते क्या हैं। वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जो उनके कदमों पे गिरा हुआ हो, जो डिफ़ॉल्ट हो चुका हो, और जिसको कान से पकड़ के हम जिस तरह की चाहें डिक्टेशंस करवा सकें। इसमें अहम तरीन बात यह है कि कंसेंसस उन डिस्कशन में होता है कि पाकिस्तान में एक जो मूवमेंट इस वक्त पैदा हो चुकी है इमरान खान के आने से, वो मूवमेंट किसी भी वक्त किसी भी हालत में एक ऐसे खौफनाक किस्म की सूरत हाल में बदल सकती है कि जिस खौफनाक किस्म की सूरत हाल जो है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी आ गई है इस कौम के अंदर कि जो एनर्जी एक बहुत मुस्बत तब्दीली चाहती है। इस मूवमेंट के अंदर पोस्ट पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट सिनेरियो जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ थिंक टैंक जो हैं वो अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जिनमें वो समझते हैं कि अगर इमरान खान को हम नाअहल करार दिलवाते हैं तो तब भी ख़तरा है कि वो इस तरह इलेक्शन जीत सकता है। इमरान खान को कत्ल करवाया जाता है तो उसके अंदर से कुछ समझ नहीं आती कि कैसी लीडरशिप आगे पैदा हो सकती है। मसलन कायद आज़म इंतकाल कर गए, फातिमा जिन्ना एक बिल्कुल घरेलू किस्म की औरत थी, लेकिन जैसे ही अयूब खान कभी सोच भी नहीं सकता था कि फातिमा जिन्ना उनके मुकाबले पर खड़ी हो जाएगी और अयूब खान को नाकों चने चबा देगी। वर्चुअली अयूब खान हार गया था मशरक़ी पाकिस्तान में भी और कराची और बाकी जगहों पर भी। ये सिर्फ पंजाब के कुछ वो लोग थे जो खौफ के अंदर आ गए, और हमेशा से उनके रवैया यही होता है, उन्होंने अयूब खान को जिता दिया, लेकिन अयूब खान की हुकूमत को हिलाने के लिए काफ़ी थी। कौन उसकी मौत के बाद आता है इसके पर गौर हो रहा है। अगर उसकी यहाँ तक गौर हुआ रहा है कि अगर उसकी एक बहनों में से कोई औरत उस परचम को लेकर खड़ी हो गई, कोई भी हो गई, या उस अनारकी के अंदर कोई और लीडरशिप पैदा हो गई, तो एक बहुत बड़ी खौफनाक लीडरशिप होगी। यहाँ तक सोचा जा रहा है, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि जिसके अंदर वो समझते हैं कि इमरान खान को पावर में आने दो और फिर उसके बाद अगर वो वीक हो गया तो उसको एक सियासी तौर पे शहीद करार दे दिया जाए, और उसके बाद फिर जब हुकूमत में होता है तो आसान भी होता है। ये बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही हैं। पोस्ट सिनेरियो के अंदर यहाँ तक सोचा जा रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम्स के बारे में क्या गुफ्तगू की जाएगी। ये बहुत बड़ा खौफनाक सिनेरियो है पोस्ट डिफ़ॉल्ट। आज से तकरीबन 1 साल कबल जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो मैंने लिखा था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के रास्ते पे डाला जा रहा है, और डिफ़ॉल्ट करने के बाद पाकिस्तान को अपनी डिक्टेशंस कराई जाएंगी कि हमने क्या क्या चाहते हैं और किस तरह के चाहते हैं। अमेरिका को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत रहती है। हाँ, इस बात पर दिलचस्पी है कि पाकिस्तान उसके सामने कैसे सरेंडर करता है, पाकिस्तान उसकी बातें कैसे मानता है। जैसे गुज़श्ता 1954 से लेके अब तक पाकिस्तान बड़ा पीर से लेके जैकबाद तक उनको अड्डे फराम करता रहा, कैसे फराम करता है। पाकिस्तान चीन से अपनी दोस्ती को कैसे आहिस्ता आहिस्ता कम करता है। पाकिस्तान, ये ऐसी डिमांड्स हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से कर रहा है, लेकिन शायद अमेरिका को भी अंदाज़ा नहीं है कि ये डिमांड पाकिस्तान में अब किसी के लिए पूरा करने के लिए हिम्मत, ताकत और क़ुव्वत नहीं है। ऐसी किसी किस्म की डिमांड जो है एक अवामी गैज़ व ख़दब को लेके उभर सकती है। मौजूद ख़ातिन हज़रात,
ہم ایک ایسی کیفیت میں آ چکے ہیں جس کیفیت کے اندر ہمارے اقتدار پر قابض لوگ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کا راستہ کیسے روکنا ہے۔ ان کا اس راستے روکنے کی خواہش عالمی طاقتوں کے ساتھ مل چکی ہے، لیکن عالمی طاقتوں کو عمران خان کا راستہ روکنے کے بعد خوف کا اندازہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کے بعد ہمارے لیے ایک نو گو ایریا بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اقتدار پر قابض لوگ ایسا نہیں سوچ رہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم راستہ نہ روک سکے تو ہم جہاز پہ بیٹھیں گے تو ایون فیلڈ چلے جائیں گے، سر محل چلے جائیں گے، دبئی میں اپنے گھر میں رہنا شروع ہو جائیں گے، آگ لگے گی تو پاکستان جانے اور اس کے 22 کروڑ عوام جانے۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرائسس سے نکلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔